હરે કૃષ્ણ, બધા ભક્તોનું સ્વાગત છે। આજે આપણે ભગવદ્ ગીતાનો અધ્યાય 2 શ્લોક સંખ્યા 59 એના શ્લોક પર આપણે થોડી ચર્ચા કરીશું। વિષયા વિનિવર્તન્તે નિરાહારસ્ય દેહિનઃ રસવર્જમ રસોપ્યસ્ય परं दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। अनुवाद एवं भावार्थ कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। देहधारी जीवोने इंद्रिय भोग परत्वे भले प्रतिबंधित करवामां आवे तो पण विषयोने भोगववानी इच्छा रहे छे, परंतु उत्कृष्ट रसनो अनुभव थया पछी विषयोनो रस जतो रहे छे અને તે ભક્તિમાં સ્થિર થઈ જાય છે। ભાવાર્થ: જ્યાં સુધી મનુષ્ય આધ્યાત્મમાં અવસ્થિત થતો નથી ત્યાં સુધી તેના માટે વિષય ભોગોમાંથી નિવૃત્ત થવું શક્ય નથી। યમ નિયમ દ્વારા ઇન્દ્રિય ભોગને નિયંત્રિત કરવાની પ્રક્રિયા કોઈ રોગીને અમુક પ્રકારના ખાદ્ય પદાર્થો ખાવાથી અટકાવવા જેવી છે, પરંતુ રોગીને એક તો આવા પ્રતિબંધો ગમતા નથી અને ભોજન પ્રત્યેની તેની રુચિ પણ સમાપ્ત થતી નથી। એવી જ રીતે અલ્પજ્ઞાની મનુષ્યો માટે ઇન્દ્રિય સંયમ કરવાની અષ્ટાંગ યોગ જેવી પદ્ધતિની ભલામણ કરવામાં આવી છે કે જેમાં યમ નિયમ આસન પ્રાણાયામ પ્રત્યાહાર ધારણા ધ્યાન વગેરેનો સમાવેશ થાય છે, પરંતુ જે મનુષ્યે કૃષ્ણ ભાવનામૃતના માર્ગે પ્રગતિ સાધતા સાધતા પરમેશ્વર કૃષ્ણના સૌંદર્યનું રસાસ્વાદન કર્યું છે તેને સત્વહીન જળ ભૌતિક પદાર્થોમાં કોઈ રુચિ રહેતી નથી। તેથી આધ્યાત્મિક જીવનમાં આવા સર્વ પ્રતિબંધો અલ્પજ્ઞાની નવોદિતો માટે જ હોય છે। કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં રુચિ જાગૃત નવોદિતો માટે જ હોય છે। કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં રુચિ જાગૃત નથી થતી ત્યાં સુધી જ આવા પ્રતિબંધો હોય તે રુચિકર અર્થાત કલ્યાણપ્રદ લાગે છે, પરંતુ મનુષ્ય જ્યારે વાસ્તવિક રીતે કૃષ્ણ ભાવના પરાયણ થઈ જાય છે ત્યારે આવા વિષય ભોગના ક્ષુદ્ર પદાર્થો પ્રત્યે તેને આપોઆપ અરુચિ થઈ જાય છે। ઓમ અજ્ઞાનતિમિરન્ધસ્ય જ્ઞાનંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगुणलिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकासस्वामिनिति नामिने। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सरस श्लोक है। આપણે અહીંયા દર સન્ડે હવે યુથ કાર્યક્રમ ચાલુ કર્યો છે, તો મારું થોડુંક એવું સજેશન છે કે દર વખતે
એક કોઈ પણ વક્તા આવે તો જનરલ લેક્ચર થાય છે, એની જગ્યાએ થોડા સિરીઝબદ્ધ લેક્ચરો થાય અમુક વિષયો ઉપર. જેવી રીતે ઉપદેશામૃત છે તો એમાં રૂપ ગોસ્વામી 11 શ્લોક સમજાવે છે. તો એક શ્લોક, પછી બીજો શ્લોક, પછી ત્રીજો શ્લોક, એવી રીતે. તો ઉપદેશામૃતના એક શ્લોક પર થઈ શકે. પછી એવી જ રીતે શું કહેવાય, ઈશોપનિષદ છે તો એના એક શ્લોક પર રૂપથી. તો એનાથી ફાયદો એ કે છે કે બધું જ જો કે ભગવાન કૃષ્ણના સંબંધમાં છે, પણ છતાંય આચાર્યોએ એને એક લિપિબદ્ધ કર્યું છે વિષયોને અનુરૂપ. તો આપણે એને બહુ સારી રીતે થોડું વધારે સમજી શકીએ. અને જનરલ લેક્ચરો તો કોંગ્રીગેશન ભક્તોના લેક્ચર થાય છે તો એમાં પણ બેસીને આપણે સાંભળી શકીએ. પણ જો આપણે એવું કહેતા હોય કે યુથ પ્રોગ્રામ તો કંઈક સિસ્ટમથી ચાલવું જોઈએ. પહેલાં કેવી રીતે એવું હતું કે બાળક થોડુંક મોટું થાય તો ગુરુકુળમાં શિક્ષા ગ્રહણ કરવા જતું હતું. તો ત્યાં પણ એક સિસ્ટમ હતી કે ભાઈ થોડું આ શીખે, પછી એ શીખે, પછી એ શીખે. એક ક્રમમાં બધા જ વિષયો ધીરે ધીરે બધા આપણે શીખતા હતા. તો એવી જ રીતે કૃષ્ણ ભાવનામૃત વિષય છે, બહુ વિશાળ છે. તો આપણે બધા જાણીએ જ છીએ ભગવાન કૃષ્ણ છે, આપણે આત્મા છીએ, આપણે શરીર નથી, ભગવાનના અંશ છીએ. જોકે અહીંયા બધા ભક્તોના બાળકો છે એટલે આ વિષયો તો ખબર જ છે એમ કહી શકીએ, અથવા તો ભક્તોને પણ આ વિષયો ખબર છે, એમાં કશું બહુ મોટી વસ્તુ નથી. પણ આપણે સ્તર પર કાર્ય કરતા નથી. અથવા તો જ્યારે ભગવાન કૃષ્ણ ભગવદ્ ગીતામાં કહે છે કે જ્ઞાનમ તેહમ સવિજ્ઞાનમ, આ જ્ઞાનને હું વિજ્ઞાન, આ અનુભવયુક્ત છે એટલે વિજ્ઞાન છે. અને આ જ્ઞાન છે તો એ આખું જ્ઞાન જે છે ભગવાન કૃષ્ણ ભગવદ્ ગીતામાં પણ તબક્કાવાર સમજાવે છે કે પહેલાં શરીર નથી, આત્માથી શરૂઆત કરે છે, પછી કર્મો વિષયો ઉપર આવે છે, પછી ધ્યાન યોગ ઉપર સમજાવે છે, પછી ભક્તિ યોગ પર આવે છે. એવી રીતે ધીરે ધીરે બધા જ અલગ અલગ યોગ જે છે ભગવાન પણ ક્રમબદ્ધ સમજાવે છે અર્જુનને. તો એક જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની એક સીડી છે કે જેનાથી આપણે થોડું સમજીએ, પછી એના ઉપર વધારે વિસ્તારથી સમજીએ, પછી વધારે વિસ્તારથી, અને થોડું થોડું એ પ્રમાણે એક. નહીંતર શું થશે કે અમુક એવા જ વિષયો છે જે આપણે માત્ર સાંભળતા રહેશું અને બીજા કોઈ વિષયો વિશે આપણે કોઈ દિવસ અધ્યયન કરવા માટેનો આપણે અથવા સાંભળવાનો કોઈ અવસર નહીં મળે, અથવા તો આપણે અધ્યયન જ નહીં કરીએ. તો પ્રયાસ કરી શકીએ એવી રીતે. તો આજનો જે વિષય છે, એક વિષય એવો છે કે ઈચ્છાઓને નિયંત્રિત કરો અને ભગવત ધામ જાઓ. તો આ શ્લોક આખો એના પર છે. વિષયા વિનય નિવર્તન્તે. તો જે મેં હમણાં કીધું કે ઉપદેશામૃતમાં રૂપ ગોસ્વામી જે છે એ પહેલો શ્લોકની જે શરૂઆત કરે છે, બરાબર છે, એ બધા ઈચ્છાઓને વેગોને નિયંત્રિત કરવાથી શરૂઆત કરે છે. તો જો જેવી રીતે ભગવાન કૃષ્ણ ભગવદ્ ગીતામાં ક્યાંથી શરૂઆત કરે છે? આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છે. અને આ શ્લોક એ આ ભગવદ્ ગીતાનો બીજો અધ્યાયનો જ છે, એમાં પણ એ આવી જ જાય છે. તો આમાં શું કહે છે કે દેહધારી જીવોને ઇન્દ્રિય ભોગ પરત્વે ભલે પ્રતિબંધિત કરવામાં આવે તો પણ વિષયોને ભોગવવાની ઈચ્છા રહે છે. તો ઘણી બધી આધ્યાત્મિક પદ્ધતિઓ છે જેમાં અલ્ટિમેટ જે એક વ્યક્તિને કરવા જેવું કાર્ય જે છે શું કરે છે? વ્યક્તિ પોતાની ઇન્દ્રિયોને નિયંત્રિત કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. અને ઇન્દ્રિયોને નિયંત્રિત શેનાથી નિયંત્રિત કરવાની છે? વિષયોથી નિયંત્રિત કરવાની છે, બરાબર. ભગવાને કૃપા કરીને બધા ભૌતિક જગતમાં જે જીવો છે બધાને એક સ્વતંત્રતા આપી છે કે તમે આ ભૌતિક પ્રકૃતિ જે છે એનો ઉપયોગ કરી શકીએ આપણે. ભગવાન ઈચ્છા છે એટલે નકર ઉપયોગ ન થાય, બરાબર. ગુલાબજાંબુ પડ્યા હોય સામે પણ પેટમાં ગડબડ હોય તો ખાઈ ના શકીએ, અથવા તો ડાયાબિટીસ હોય તો ખાઈ ના શકીએ. તો જેને ડાયાબિટીસ નથી એને ભગવાનની સ્વતંત્રતા છે કે એ ગુલાબજાંબુ ખાઈ શકે અથવા તો કોઈ પણ પ્રકારની મીઠાઈ ખાઈ શકે. પણ ભગવાનની ઈચ્છા ન હોય તો ડાયાબિટીસ આવે અને આપણે ગુલાબજાંબુ ના ખાઈ શકીએ. તો એક ભગવાનની ઈચ્છા છે, એક સ્વતંત્રતા છે. ઈચ્છા છે એમ તો ન કહી શકે કે, પણ ભગવાને જીવોને કેટલી સ્વતંત્રતા આપી છે કે આપણે આ ભૌતિક જગતમાં જે કંઈ જે વસ્તુ છે એનો ઉપયોગ કરી શકીએ, દુરુપયોગ નહીં, ઉપયોગ કરી શકીએ. તો એ ઉપયોગ આપણે કેવી રીતે કરીએ છીએ? ઇન્દ્રિયોના માધ્યમથી કરીએ છીએ. અને
જેવી રીતે ભગવાનને આનંદ પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા છે, એવી રીતે જીવન એના અંશ હોવાના લીધે આપણને પણ આનંદ પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા છે. દરેક વ્યક્તિને ઈચ્છા છે. શ્રીમદ આ ભગવદ્ ગીતાના 16મા અધ્યાયમાં આસુરી ભાવમાં જે છે એમાં એક શ્લોક છે, આશા પાસે બધ્ય. આશા પાસે બધ્ય શ્લોકનો એક ભાગ છે. આશા પાસે બધ્ય. પાસ એટલે કે દોરડું, અને આશા એટલે એક આશાના દોરડાથી માણસ, અસુરી લોકો જે છે એ આશા પાસે બધ્ય છે. કેવા છે? આશાઓના પાસથી બંધાયેલા છે જે આસુરી લોકો છે. એટલે કે જે લોકો અનિયંત્રિત ઈચ્છાઓ, પહેલી વસ્તુ તો અનિયંત્રિત ઈચ્છાઓ, એનો કોઈ નિયંત્રણ નથી. ખાવા બેસે તો ખબર નથી પડતી કે કેટલું ખાવું. બરાબર? પેટ ભરાઈ જાય પછી બે જણાને ભેગા હાથ પકડી ઊભા કરવા પડે. બરાબર? એવી જ રીતે ઘણા બધા વિષયો છે. બરાબર? મૂવી જોવું હોય તો જો જોવાનું ચાલુ કર્યું હોય તો જો ખબર નહીં કેટલો ટાઈમ જોયા કરે, પછી કે ઓફિસ જવું પડે કે ઉઠવું પડે કે સુવાનો ટાઈમ થાય, જબરદસ્તી સુવાનું સંબંધ થાય તો સૂવે, નકર સૂવે નહીં. બરાબર? તો એવા ઘણા બધા વિષયો છે. નાચવાનું મન થાય તો નાચે. સવારના નાચવાના ગરબા લેવાનું ચાલુ કર્યું હોય રાત્રે, તો સવારના 4-4, 5-5 વાગ્યા સુધી ગરબા લે. બરાબર? ભગવાન માતાજીના નામ પર. એમ તો નિયંત્રણ નથી. કેટલું કરવું, કઈ વસ્તુનો કેટલો ઉપયોગ કરવો, એનું કોઈ નિયંત્રણ નથી. એટલે શીલ પ્રભુ જે ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન કૃષ્ણ કહે છે, આશા પાસે બધ્ય. આસુરિક લોકો જે છે એ ઈચ્છાઓથી બંધાયેલા છે. અને એટલે નિર્ગુણવાદીઓ અને જે માયાવાદીઓ છે એ શું પ્રયાસ કરે છે? ઈચ્છા મુક્ત થવાનો પ્રયાસ કરે છે. એ એવો પ્રયત્ન કરે છે કે ઈચ્છા થાય જ નહીં, અને ઈચ્છા થાય નહીં તો એના કોઈ પરિણામો પણ ભોગવવા ન પડે. વધારે ખવાઈ જાય અને પેટમાં ગડબડ થાય, એ ક્યારે ખવાય? જો વધારે ખવાઈ જાય તો. અને વધારે ક્યારે ખવાઈ જાય? જ્યારે ખાવાની ઈચ્છા થાય તો. ખાવાની ઈચ્છા જ ન થાય તો વધારે ન ખવાય, વધારે ન ખવાય તો પેટમાં ગડબડ ન થાય. તો એ એવો વિચાર કરે છે. એમની જે પદ્ધતિ છે, નિર્વાણ પદ્ધતિ કહીએ, બરાબર, અથવા તો ધ્યાન યોગમાં પણ એ લોકો એવો પ્રચાર કરે છે કે કોઈ વિચાર નહીં કરવાનો. બધા ગુજરાતી જ સમજે છે કે હિન્દી બોલે? હિન્દી હા, પાછળથી આવે. ગુજરાતી સમજાય છે કે હિન્દી? હા, हिंदी. चलो हिंदी बोलता हूँ. तो हिंदी तो सबको समझ में आता है ना? ठीक है. तो जो निर्गुणवादी है और मायावादी है वो ऐसा विचार करते हैं कि इच्छा ही ना हो. इच्छा नहीं होगी तो क्या होगा? ज़्यादा नहीं खाना खाएंगे, और ज़्यादा नहीं खाना खाएंगे तो पेट गड़बड़ नहीं होगा. इससे अच्छा है हम इच्छा ही मत करें, ऐसा सोचते हैं. लेकिन ऐसा संभव नहीं है. इच्छा कब नहीं करेंगे हम? कौन इच्छा नहीं करता है? तृप्त. एक तो है कि जिसका पेट भरा, मतलब जो तृप्त हो गया है वो तो है. एक ये भी अच्छा जवाब है. जो तृप्त हो गया है, जिसने खा लिया है, उसको अगर खाना देंगे तो बोले अभी नहीं खाना है. ठीक है. तो एक तो जो तृप्त हो गया है, लेकिन उससे पहले मृत व्यक्ति बताया, या तो मृत शब्द का अर्थ है कि मतलब जिसमें जो चेतन नहीं है, जो जड़ है, पदार्थ या कोई भी व्यक्ति, लेकिन जो चेतन है वो इच्छा करेगा. वो इच्छा के बिना रह नहीं सकता. तो मायावादी और निर्गुणवादी क्या प्रयास करते हैं? इच्छा विहीन होने का प्रयास करते हैं, जो संभव नहीं है. चेतना का एक लक्षण है कि इच्छा करना, बराबर. तो वो तो आप जैसे बोलेंगे आग को बोलना जलाना मत. अब आग में आग है, हाथ डालेंगे तो जलेगा, वो उसका स्वभाव है. तो वो स्वभाव के विपरीत वो कार्य नहीं कर सकता. उसी तरह चेतन आत्मा जो है उनका एक स्वभाव है इच्छा करना, और वो इच्छा जो है वो भगवान में है, इसलिए हम आत्मा में भी है, और वही चेतना का गुण है. तो वो प्रयास करते हैं कि इच्छा विहीन होने का. तो वो प्रयास जो है वो कैसा है? कृत्रिम है, बनावटी प्रयास है, स्वाभाविक प्रयास नहीं है. स्वाभाविक प्रयास क्या है? उस इच्छा को शुद्ध करना. तो वो यहाँ का ये श्लोक है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारिष्यते. वो बताते हैं कि देहधारी जीवों को अगर विषयों का भोग करने से अगर आप रोकेंगे तो हो सकता है आप उनको रोक लो, लेकिन इच्छा तो रहेगी ना.
मानो किसी को, जैसे जैसे वही एग्जाम्पल है डायबिटीज़ वाला, किसी को डायबिटीज़ है, उसको आप गुलाब जामुन नहीं लेंगे, लेकिन उसको इच्छा तो होती है कि गुलाब जामुन खाओ, है ना। वो इच्छा थोड़ी चली जाएगी, आप बोलेंगे गुलाब जामुन नहीं मिलेगा, ऐसा रोकने से इच्छा नहीं चली जाती, इच्छा तो रहती है। तो यही जो सिद्धांत है वो हर इंद्रियों के विषय में लागू होता है। किसी को अच्छा गाना सुनना है, लेकिन आप उसको ज़बरदस्ती उससे मान लो मोबाइल या कुछ साउंड सिस्टम उससे ले लेंगे, तो लेकिन इच्छा तो रहेगी, वो इच्छा नहीं जाती है। तो वो जो इंद्रियों को इस तरह से रोकने का जो प्रयास है वो क्या है, बनावटी प्रयास है, उससे आदमी कभी सफल नहीं होगा। श्रीमद् भागवतम में सोबरी मुनि की कथा आती है, और ऐसे बहुत शास्त्रों में कथा है, सोबरी मुनि की नहीं। सोबरी मुनि ने क्या किया, इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए वो जो नदी है, नदी के तल में जाकर बैठ गए, तल को तली बोलते हैं ना, हाँ, तले में जाके बैठ गए और वहाँ ध्यान करने लगे, ताकि क्या हो कि ना कोई आवाज़ सुनाई दे, आवाज़ ना सुनाई दे, ना कोई उनको डिस्टर्ब करे, पता ही नहीं वो नदी में नीचे बैठ के कोई ध्यान कर रहा है। तो वो ऐसा प्रयास करना शुरू किया उन्होंने, लेकिन एक क्षण के लिए ऐसा हुआ कि चलो आँख खोल के देख लेते हैं, वो भी एक इच्छा हो गई। और जैसे आँख खोल के देखा तो मछलियों को मैथुन करते देख लिया, तुरंत इच्छा हो गई, जागृत हो गई, और वो इतनी तीव्र हो गई, वो जो जैसे बताते हैं ना, स्प्रिंग जो होती है उसको जितना दबाते हैं और छोड़ने पे वो उतनी ज़्यादा उछलती है। तो ऐसे बनावटी प्रयासों से अगर हम इंद्रियों को नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे, लेकिन जब हमको वो इंद्रिय विषय मिलेगा तो वो और तीव्रता से हम वो विषय भोग करेंगे, ऐसा। और जो नियंत्रण करने का जो प्रयास बनावटी है, लेकिन वो प्रयास तो कर रहे हैं कि मैं इच्छा विहीन हूँ, लेकिन वो भी एक इच्छा ही है ना। इच्छा विहीन होना वो भी एक इच्छा ही है। हम प्रयास कर रहे हैं इच्छा विहीन होना, लेकिन ऐसी इच्छा करना भी तो एक इच्छा है ना। तो कभी संभव नहीं है कि जो चेतन आत्मा है वो इच्छा विहीन हो सके। इसलिए रूप गोस्वामी बताते हैं, भक्ति रसामृत सुने थे, अन्याभिलाषिता शून्यम। शून्यम करना मतलब क्या, सारी अभिलाषाओं मायावादी क्या करना चाहते हैं, शून्य करना चाहते हैं सारी इच्छा है, लेकिन वो संभव नहीं है। लेकिन रूप गोस्वामी क्या समझाते हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलम भक्तिरुत्तमा। रूप गोस्वामी बताते हैं कि अन्य अभिलाषाएं शून्य, अन्य अभिलाषाएं कौन सी शून्य है करनी चाहिए हमको, शून्य तो करनी है हमको अभिलाषाएं। अन्य अभिलाषाएं कौन सी, अन्य अभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृत आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम। भगवान कृष्ण की सेवा करने में जो अनुकूल नहीं है, ऐसी सारी इच्छाओं को शून्य करना है। और उसको एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं कि इच्छाओं को शुद्ध करना। इच्छा तो रहेगी लेकिन उनको शुद्ध करना है, या ऐसी इच्छाएं ही हमारे मन में उत्पन्न हो जो भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए अनुकूल हो, उसके अलावा कोई इच्छा ही उत्पन्न ही ना हो। अगर ऐसा हो जाए तब हम भक्ति में स्थिर हो जाएंगे। या तो वही भक्ति है, और प्रभुपाद बोलते वही ऐसी अवस्था ही मुक्ति है, वही अवस्था अनाभिलाष ज्ञान कर्म भक्ति उत्तमा, ऐसी ही भक्ति उत्तम है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इच्छा करना, अभी इच्छा तो कैसा है कि ब्रह्मा जी को भी इच्छा है, मुझे भी कोई इच्छा है, आपको भी कोई इच्छा है, कुत्ते को भी कोई इच्छा है, और एक चींटी को भी कोई इच्छा है। इच्छा तो रहने ही वाली है। अभी देखिए, अगर इस कमरे में कोने में कहीं अगर गुड़ या शक्कर रख दी जाए तो चींटी को 100 माइल या तो 100 किलोमीटर समझ ले दूर पड़ी हुई चीज़ के बारे में पता चल जाता है। भगवान ने उनको ऐसी व्यवस्था बनाई। हमारे लिए भले छोटा सा कोना है, अगर इस कोने में पड़ा है और चींटी दूसरे कोने में है तो हमारे लिए तो वो डिस्टेंस छोटा सा है, ठीक है, लेकिन चींटी के लिए कितना है, 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। अब भगवान ने देखो कैसे सिस्टम बनाई, उसको 100 किलोमीटर दूर पड़ी हुई चीज़ के बारे में भी पता चल जाता है, अपने को नहीं पता चलता। बताइए 100 किलोमीटर दूर कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है, क्या है, हमें नहीं पता चलेगा। तो भगवान ने देखो चेतन आत्मा को कैसे सिस्टम दिए। अब बोलो वो सिस्टम ही हटा दो, कैसे संभव है? तो वो संभव नहीं, वो रहेगी, हमेशा रहेगी। तो हमको क्या करना है, जो हमारे इंद्रिय विषय है वो
पहले तो इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। अगर हम भगवान की सेवा में लगाएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे इंद्रियां शुद्ध हो जाएगी और फिर वो ऐसी ही चीज़ों की डिमांड करेगी जो भगवान कृष्ण की सेवा में अनुकूल है, उस दूसरी चीज़ों की डिमांड नहीं करेगी। तो ऐसा करने के लिए रूप गोस्वामी जो है वो उपदेशामृत में बताते हैं, वाचो वेगम मनस वेगम, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम, एतान वेगान यो वेश हित धीरः सर्वाम अपि माम पृथ्वीम सशिष्यात्। जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को जो नियंत्रित कर सकता है वो पूरी पृथ्वी पे शिष्य बनाने के लिए योग्य है, लेकिन वो आसान नहीं है ना। और उनके भावार्थ में भी प्रभुपाद ने लिखते हैं और एग्जाम्पल देते हैं परीक्षित महाराज का, जो सुखदेव गोस्वामी महाराज को पूछते हैं कि लोगों को पता है कि जैसे मुझे चोरी करेगा कोई व्यक्ति तो क्या होगा, सजा होगी, पता है, लेकिन फिर भी व्यक्ति करता है, करते हैं ना लोग। पता है कि चोरी करने से सजा होती है, पुलिस पकड़ लेती है और पकड़ लेने के बाद डंडे भी पड़ते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे 3 प्रकार के लोगों का वर्णन किया है कि एक ऐसा व्यक्ति है जो शास्त्रों से और ऐसे लोगों से सुन के समझ लेता है कि भाई चोरी करना जो है वो पाप है, दंडनीय अपराध है, तो समझ जाता है, वो दोबारा नहीं करेगा। दूसरा एक व्यक्ति है जो सुनता है और देखता भी है कि किसी ने चोरी की, पुलिस ने उसको पकड़ लिया और जेल में ले जाके उसको डंडे मारे, वो देखा भी, तो वो सुनने से और देखने से समझ जाता है। तीसरा एक व्यक्ति है, वो क्या करता है, सुनता भी है, देखता भी है, फिर भी चोरी करता है ना, फिर एक बार चोरी करेगा, डंडा खाएगा, फिर समझ जाता है। और चौथा व्यक्ति कैसा है, सुनता भी है, देखता भी है, डंडे भी खाता है, फिर भी चोरी करना चालू रखता है। तो हम ऐसे हैं, चौथी कैटेगरी के लोग, है ना। हम देखते हैं भौतिक जीवन में ऐसा कोई इंद्रिय भोग नहीं है जो हमने नहीं किया हो इस जन्म में, या तो हाथी के शरीर में, या चींटी के शरीर में, मछली के शरीर में, या कोई और 84 लाख योनियों में अलग अलग शरीर में हमने सारे इंद्रिय भोग करके देख लिए हैं। फिर भी हमको आशा है कि अभी इस जन्म में हमको और थोड़ा मजा कर पाएंगे, ऐसा है ना। पुनः चर्वितम चर्वितानाम, बार बार खाया हुआ खा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको वो बुद्धि नहीं आ रही है कि संभव ही नहीं है भौतिक जगत में कि हम ये जो भौतिक जगत के जो विषय है उसका इंद्रिय भोग करना चालू रखेंगे और हम एक दिन संतुष्ट हो जाएंगे और फिर बाद में हम भगवत धाम जाएंगे। या तो हम ऐसा करेंगे कि हम कोई इच्छा ही नहीं करेंगे, ऐसा ध्यान करके बैठ जाएंगे और फिर एक बार ऐसा आएगा कि हम शरीर छोड़ देंगे और फिर भगवत धाम चले जाएंगे। ऐसा कोई संभव, ऐसा कोई शास्त्र में कोई ऐसा एग्जाम्पल भी नहीं है कि किसी ने इच्छा विहीन होके भगवत धाम गया हो। भगवत धाम तो वो जा ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें इच्छा विहीन होने में जो विचार है वो विचार में भगवान की सेवा करने का तो विचार ही नहीं है, वो चाहता ही नहीं भगवान की सेवा करना। तो भगवत धाम तो वही जाएगा जिनको भगवान की सेवा करने की इच्छा है। जिनको इच्छा ही नहीं है वो वहाँ जाके क्या करेगा, कुछ करना ही नहीं है उनको। अगर जिनको सेवा करने की इच्छा है, भले ही पेड़ को भी भगवान की इच्छा हो, सेवा करने की इच्छा होती है कि मेरे ऊपर इतने अच्छे फल फ्रूट आए, मतलब पुष्प वगैरह आए जिसको भगवान को ऑफर कर सके, भगवान उसको खा सके, या ऐसे पुष्प की भगवान को माला अर्पण कर सके। तो पेड़ पौधों को भी अगर ऐसी इच्छा है तो वो भगवत धाम जा सकते हैं। लेकिन जिनको वो भी इच्छा नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, तो वो भगवत धाम कैसे जाएगा। और वैसे भी उनकी इच्छा क्या होती है, वो भगवान की जो शरीर के अंग कांति है, ब्रह्म ज्योति है, उन पे विलीन होना चाहते हैं। तो भगवान को अनुमति देते हैं तो वो ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाए। लेकिन ऐसी इच्छा की भक्त कभी, ऐसी मुक्ति की इच्छा भक्त कभी नहीं करता। वैसे भी वो लोग वहाँ जाके क्या करते हैं, वास्तव में भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि ऐसा कभी समय नहीं था कि मैं नहीं था, हाँ, और आप भी नहीं थे और मैं भी नहीं था, ऐसा कभी समय नहीं था। तो आप हमेशा रहेंगे, तुम भी हमेशा थे, ये सैनिक भी पहले थे, मैं भी था, अभी भी हम सब है और भविष्य में भी हम सब रहेंगे।
तो भगवान ने भगवद गीता में बता दिया कि हमारा अस्तित्व हमेशा आत्मा का बना रहता है, कभी वो नाश नहीं होता है ना। तो जब वो ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाते हैं तो क्या होता है, क्या होता है, ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाते हैं तो क्या होता है। तो शास्त्र में उसका उदाहरण दिया जाता है कि एक तोता जो होता है वो पेड़ में बैठ जाता है, तो दूर से देखने में क्या दिखता है, सिर्फ पेड़ दिखता है, लेकिन पास में जाएंगे तो अंदर बैठा देखेगा कि तोता भी बैठा हुआ है ना। तो जीव जो है वो भगवान में विलीन होने की जो इच्छा करते हैं उसमें ऐसा होता है, वो ब्रह्म ज्योति में सुसुप्त अवस्था में पड़ा रहता है। एक और एग्जाम्पल है मेंढक का। मेंढक होता है और जब बारिश की सीजन नहीं होती तो ज़मीन में अंदर चला जाता है, और जैसे ही बारिश गिरती है तो मिट्टी ज़मीन से बाहर निकलता है। वो अंदर सुसुप्त अवस्था में पड़ा रहता है, वो मर नहीं जाता, लेकिन वो वहाँ पड़ा रहता है। उसी तरह जीवात्मा जो है, जो ब्रह्म ज्योति में विलीन होते हैं, वो वहाँ ऐसे पड़े रहते हैं, कुछ नहीं करना है बस। लेकिन जैसे इस श्लोक में बताया है ना कि इच्छा नहीं जाती है, तो जैसे सौबरी मुनि है, नदी में बैठ के जैसे आँख खुली तो लगा कि चलो अब कुछ करते हैं, है ना। तो वो भी वहाँ पड़े पड़े क्या करेंगे, फिर इच्छा होती है कुछ करते हैं, भाई यहाँ क्या करेंगे, इतनी मेहनत करके ब्रह्म ज्योति में विलीन होके यहाँ तो आ गए, अब क्या करना है यहाँ। भगवान उनको ऐसा तो भगवान ने बता दिया कि कभी आत्मा का नाश नहीं होता है, तो वो तो वहाँ पड़े रहेंगे ऐसे ही ब्रह्म ज्योति में बिना कुछ किए भी है। लेकिन इच्छा रहेगी, इच्छा जाएगी नहीं, तो फिर इच्छा करते हैं वापस भौतिक जगत में आने का, चलो जाके फिर इंद्रिय भोग करते हैं। और भगवान भगवद गीता में बताते हैं मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद यत्ति सिद्धयेत यत्नामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेदि तत्वतः। तो ऐसे जो योगी है या मायावादी लोग ऐसे अगर आध्यात्मिक जीवन का उस हिसाब से अनुशीलन भी करते हैं तो ऐसा हो सकता है करोड़ों साल बाद फिर बाद में उनको बुद्धि आए कि भाई ये क्या कर रहा हूँ, रोज जाके फिर वो इस जन्म में मैंने मेहनत की, ब्रह्म ज्योति में पड़ा रहा, कुछ करोड़ों साल मतलब कई युगों तक वहाँ पे पड़े रहे, फिर वापस भौतिक जगत में आए, फिर वापस वही ध्यान तपस्या करके फिर वापस गए, तो फिर उनको ध्यान में आता है कि ये क्या कर रहा हूँ मैं भाई। जैसे भगवान भगवद गीता में 5वें अध्याय में 29वें श्लोक में बोलते हैं ना, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मा। फिर बाद में उनको होता है कि भाई इस पद्धति में कुछ समस्या है ना, या तो किसी वैष्णव की कृपा से या भगवान की कृपा से उनको ऐसा अवसर मिल सकता है कि उनका जन्म जो है वो भगवत भक्त के घर में हो, या कोई भगवत भक्त से उनका संग हो जाए, उनको मिल जाए, एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए, ताकि फिर उसको ध्यान में आए। सुकृति तो है कि आध्यात्मिक जीवन का अनुशीलन करना है, लेकिन कैसे करना है, क्यों करना है, ठीक है, वो कुछ ज्ञान नहीं है, बस वो ध्यान लगा के बैठे रहते हैं ऐसे। तो फिर बाद में जब भक्त का उनको संग होता है भगवान की कृपा से, या तो भक्त उनको कृपा देते हैं कि ताकि उनको एक सुकृति हो भक्ति करने की, तो फिर क्या होता है, वो क्या करते हैं, भक्तिमय जीवन का अनुशीलन करना शुरू करते हैं। इसलिए एक और श्लोक है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, जब आध्यात्मिक जीवन का अनुशीलन करने की वजह से भले ही ज्ञान योग कर्म योग वगैरह ऐसी पद्धतियों से क्या होता है कि पुण्य कर्म इकट्ठे हो जाते हैं, तो ऐसे पुण्य कर्म इकट्ठे होने की वजह से कभी हम इंद्र भी बनते हैं, कभी हम ब्रह्मा जी भी बनते हैं, और ब्रह्म ज्योति में विलीन भी हो जाते हैं, जैसे ये देह त्याग करने के बाद, है ना। तो कुछ भी हो सकता है। तो अब जब इंद्र जैसा पद प्राप्त हुआ, ब्रह्मा जी से जैसा पद प्राप्त हुआ, अब फिर को किसका पूछना, करो मजा। अभी एक भौतिक जगत में किसी को अगर बहुत सारे पैसे प्राप्त हो जाते हैं तो व्यक्ति उस पैसे के मद में इतना अंधा हो जाता है कि वो भगवत भक्ति भूल जाता है। वो सोचता है क्या जरूरत है भगवान की भक्ति करने की। और ये लोग जो करते हैं वो ऐसा कह के उनका उपहास करते हैं कि ये लोग भी मांग नहीं जाते हैं ना, मुझे तो सब मिल गया, मेरे को मांगने की मेरे को कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो मांगना नहीं, और मांगना नहीं तो जाना क्यों वहाँ पे, है ना। तो पता ही नहीं है, जो मांगने के लिए जाते हैं उनको भी नहीं पता कि क्यों, किस लिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए, क्यों मंदिर जाना चाहिए, वहाँ जाके क्या मांगना चाहिए, अगर मांगना भी है तो क्या मांगना चाहिए, वो पता ही नहीं है, ठीक है।
और जो जिनके पास सब कुछ है वो ये सोचता है कि मेरे को कुछ मांगना ही नहीं तो मैं क्यों जाऊँ, इसलिए वो ज़्यादातर भक्ति नहीं करते। तो अब भौतिक जगत की अगर एक सामान्य जीव की अगर ये स्थिति है तो देवी देवताओं या ब्रह्मा जैसे जैसे जो पद है उस पद में तो बहुत सुविधाएं हैं। तो उस स्तर पे भगवान का भजन करना संभव नहीं होता। एक मनुष्य जीवन ही है जो एक दरवाजे के समान है, और यहाँ क्या है, ना ज़्यादा सुख है ना ज़्यादा दुख है, ऐसे तो बहुत सारा दुख है लेकिन फिर भी एक सीमित मात्रा में है, ताकि दोनों का बारी बारी अनुभव होता रहता है। स्वर्ग लोक जैसे लोक में क्या दुख का अनुभव ही नहीं होता है। जब दुख का अनुभव ही नहीं होगा तो इच्छा नहीं होगी कि भाई इससे छूटा कैसे जाए, मुक्त कैसे हुआ जाए, है ना, मज़ा ही मज़ा है। लेकिन मनुष्य जीवन जो है वहाँ पे इतना थोड़ी बार सुख आएगा, थोड़ी देर बाद दुख आएगा, तो बार बार ये सुख और दुख का अनुभव होते रहने की वजह से व्यक्ति कभी अगर बुद्धि जागृत हो जाती है भक्तों की कृपा से, भगवान की कृपा से, तो विचार आता है कि ये क्यों बार बार मुझे दुख भोगना पड़ेगा, क्यों बार बार मुझे सुख का अनुभव करना पड़ेगा। और सुख जो मुझे तो चाहिए लेकिन अनलिमिटेड चाहिए, थोड़ा सा नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ लिमिटेड मिलता है। हो सकता है मैं इंद्र भी बन जाऊँ, लेकिन वहाँ पे भी अगर दुख नहीं है तो सुख तो लिमिटेड ही है, अनलिमिटेड सुख तो वहाँ पे भी नहीं है। हाँ, यहाँ के मुकाबले में ज़्यादा है लेकिन अनलिमिटेड तो वहाँ पे भी नहीं है। तो अब ट्राई ही करनी है तो अनलिमिटेड के लिए ही ट्राई करें ना, बाकी तो सारी ट्राई तो हमने कर ली है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, या इससे अगले जन्म में, या किसी न किसी जन्म में हमने ट्राई कर ली है। इंद्र बन के भी ट्राई कर लिए, ब्रह्मा जी बन के भी ट्राई कर ली है। भले ही हमें याद नहीं है लेकिन एक समय था जब हम इंद्र रहे होंगे या ब्रह्मा जी रहे होंगे या और कोई अन्य देवी देवता। तो प्रयास तो हमने कर लिया है, लेकिन तब भी हमारे प्रयास में हमको जो मिला था वो क्या था, लिमिटेड सुख मिला था, भले ही दुख नहीं था। तो हम अगर ये समझेंगे, और ये समझने का जो अवसर है वो मनुष्य जीवन में ही है, तो हमें प्रयास करना चाहिए। और इच्छाओं, देखिए इच्छा तो भक्त भी करता है ना, और असुर भी करता है। लेकिन जो बताया ना, आशा पासे बध्या, जो असुरी जो इच्छा है, ऐसी इच्छा करने से क्या होता है, बंधन उत्पन्न होता है। और भगवान की भक्ति में सेवा करने की जो इच्छा से, उससे बंधन उत्पन्न नहीं होता। भगवद गीता में श्लोक है ना, यज्ञार्था कर्मणो अन्यत्र, है ना, न कर्म बंधन जाए। मतलब यज्ञ के अर्थ के लिए, मतलब भगवान के लिए अगर हम कुछ कार्य करते हैं, न कर्म बंधन, उसके कोई बंधन उत्पन्न नहीं होता, भगवान भगवद गीता में बताते हैं। तो बंधन क्या है, और बंधन जो उत्पन्न होता है वो क्या है। जैसे हम बात करते हैं कि मुक्त होना है, तो मुक्त तो पता होना चाहिए ना कि बंधे हुए हैं। जब पता ही नहीं कि तो मुक्त होने की बात कहाँ से आएगी। अगर हमको पता है कि हम बंधे हुए हैं तो हम मुक्त होने की बात करेंगे। जब पता ही नहीं कि बंधे हुए तो मुक्त होने की कौन बात करेगा। जो लोग भक्ति में जीवन या आध्यात्मिक जीवन नहीं अपनाते, उनको क्या है, मैं बंधा ही हुआ नहीं हूँ, उनको वो विचार ही नहीं है दूर दूर तक कि बंधे हुए हैं, सब ठीक ही तो है, क्या प्रॉब्लम है, ऐसा सोचते हैं, कोई समस्या ही नहीं है, ऐसा सोचते हैं। तो इसलिए अगर हमको वो अनुभूति ही नहीं कि हम बंधे हुए हैं तो मुक्त होने का कभी हम प्रयास नहीं करेंगे। तो इसलिए पहले सबसे जो महत्वपूर्ण जरूरी चीज़ है कि हम पता हो जाए भाई बंधे हुए हैं तो छूटने का प्रयास करेंगे। तो जो बंधन लगता है वो बंधन क्या है, ये शरीर का बंधन है। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अधीन जो है हमको ये शरीर दिया जाता है, उसमें हमको लिमिटेड किया जाता है, मतलब सीमित किया जाता है कि हम एक मर्यादा के अंदर अंदर हम सुख भोगेंगे, एक दुख भोगेंगे, है ना। जैसे देवताओं के शरीर में है तो उसमें मर्यादा बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा सुख भोगेंगे। मनुष्य शरीर जो है उसमें लिमिटेड, मतलब दोनों सुख और दुख जो है वो समान मात्रा में जैसे बोल सकते हैं। अब जो नरकलोक में जो लोग हैं वहाँ पे सुख तो बहुत ही दूर की बात है, लेकिन दुख ही दुख ज़्यादा है, लेकिन सुख भी है, ऐसा भी वर्णन है। नरकलोक में पृथ्वी से भी ज़्यादा सुख है, ऐसा बताया। तो कहने का मतलब है कि स्थान और जो ये हमारा शरीर है उसके अनुरूप जो है हमारे सुख और दुख प्लस माइनस होते रहते हैं। लेकिन भक्ति में जो मनुष्य शरीर है और ये पृथ्वी लोक है, दोनों बीच में आता है। यहाँ जो पशु है वो एकदम ऐसी योनि में बंधे हुए कि वो विचार ही नहीं कर सकते, तो एक अलग अवस्था है।
लेकिन मनुष्य शरीर और ये पृथ्वी लोक जो है वो दोनों ही के लिए सुयोग्य जगह है, और मनुष्य शरीर है वो सुयोग्य साधन है भगवंत भक्ति प्राप्त करने का। तो हमें इस अवसर का लाभ लेना चाहिए। भगवान ने भगवद गीता में जो विज्ञान समझा है उसका सिस्टेमेटिक जो है उसका अभ्यास करना चाहिए, ताकि हम इस अवसर का लाभ ले सके, नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी, है ना, और इंद्र भोग करते रहिए, फिर कभी कीड़ा। देखो भगवान की व्यवस्था कैसी है कि वो मल के कीड़े को भी उसमें वो आनंद का अनुभव करवाते हैं। अभी कभी जैसे गोबर है, तो ऐसे तो गाय का गोबर तो शुद्ध है, लेकिन फिर भी हम सोचेंगे कि अरे ये तो प्राणी का मल है ना, तो उसमें या किसी और प्राणी का, जानवर का भी जो मल है, तो हम देखते ही नाक बंद करके, या देखना भी नहीं चाहते और वो नाक बंद करके वहाँ से आगे चले जाएंगे, या तो रास्ते में जाएगा तो पाँव भी नहीं लगेगा और ध्यान रखेंगे, गंदा हो जाएगा ऐसे सोच के, ठीक है। लेकिन वो जो उसके मल के अंदर का जो कीड़ा है उसको मजा आता है। ये भगवान की माया शक्ति है, वो ऐसी निकृष्ट जगह को में भी हमको आनंद का अनुभव कराएगी। कितने भी भौतिक जगत में दुख है, फिर भी बहुत सारे लोगों को दुख कहाँ है, कोई दुख नहीं है, मुझे तो सुख ही सुख है, कोई समस्या नहीं है। ये क्या है, माया उनको ऐसा अनुभव करवाती है। दुख तो है ही, इतने डंडे खाए हैं, लेकिन फिर भी हाँ मजा है। वो हम उदाहरण देते हैं ना बहुत बार कि वो एक आदमी जंगल से भाग रहा है, वो खाई में गिर जाता है, गिरते गिरते एक डंडे मतलब पेड़ की टहनी है वो पकड़ लेता है, नीचे तालाब है, इसमें मगरमच्छ है, ऊपर जंगली शेर है, और गिरा तो क्या हुआ कि मधुमक्खी के छत्ते जो है उसमें हाथ लग गया, तो मधुमक्खियाँ काट रही है, और दो चूहे वो जो टहनी पकड़ी है वो काट रहे हैं। तो फिक्स है, थोड़ी देर में टहनी कटेगी तो नीचे मगरमच्छ जो वो खा जाएंगे, ऊपर जाएगा तो जानवर खा जाएंगे, और जब तक नहीं है गिरेगा तब तक मधुमक्खियाँ काटती रहेगी, है ना। लेकिन उतने में वो मधुमक्खी के छत्ते का जो शहद की एक बूंद है वो उसकी जीवा पे आके गिर जाती है, मजा है ना। तो ये है, वो सारा दुख भूल जाता है, वो सिर्फ वो एक मधु की बूंद का आस्वादन करने में सारा दुख, सारी समस्याएं भूल जाता है। ये भगवान की योजना है, आयोजन है। तो इंद्रियों को नियंत्रित करना और विषयों से उनको रोकना वो आसान चीज़ नहीं है, बहुत मुश्किल है। अगर आसान रहती तो सब लोग भगवत धाम जाते ना, है ना। पहले तो इच्छा नहीं करते, जब इच्छा ही नहीं करेंगे तो फिर तो करने का प्रयास करने का, वो कार्य करने का प्रयास ही नहीं करेंगे। तो पहले तो इच्छा ही नहीं करते ज़्यादातर जीव, मनुष्यानाम सहस्रेषु, ठीक है। फिर कष्टि देयति सिद्धये, ऐसे में कोई है वो उनको इच्छा तो हुई, लेकिन अगर मेथड है वो गलत पकड़ लिया, है ना। जाना था बॉम्बे और वो मतलब जाना था दिल्ली और बॉम्बे की ट्रेन में चढ़ गया। अब तो फिर दिल्ली आएगा ही नहीं ना, बॉम्बे की ट्रेन में चढ़ा है तो फिर जब दिल्ली बॉम्बे उतरेगा तो बोलेंगे अरे भाई वो मुझे क्या लाल किला देखना है। अरे भाई यहाँ का लाल किला है, लाल किला तो दिल्ली में है। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, अब वापस ट्रेन पकड़ के जाओ भाई वापस, है ना। दिल्ली की ट्रेन में बैठो तो दिल्ली आएगा, फिर लाल किला देखने को मिलेगा। तो ऐसा है, तो ट्रेन गलत पकड़ ली, और फिर जब कोई बताएगा कि नहीं ये गलत ट्रेन है, अब ये ट्रैक सही है, फिर धीरे धीरे प्रयास करना शुरू करता है। और अगर गंभीरता से प्रयास करते हैं तो वो इसी जन्म में भगवत धाम जा सकता है। तो क्या करना है, इच्छा जो है हमारी वो तो रहेगी, वो जाएगी नहीं कभी, लेकिन उनको हमको क्या करना पड़ेगा, शुद्ध करना पड़ेगा। और शुद्ध करने का जैसे इसमें एक उदाहरण बताते हैं कि उत्कृष्ट रस का अनुभव होने के बाद जो निकृष्ट रस है उसकी इच्छा चली जाती है और व्यक्ति जो है वो भक्ति में स्थिर हो जाता है। अब जैसे छोटा बच्चा है, जो छोटा हो रहता है तभी वो खिलौने की कार से खेलता है। अभी बड़ा होने के बाद कौन खिलौने की कार से खेलता है, कोई देखा है क्या? 25 साल 50 साल का हो जाने के बाद कोई खिलौने की कार से, अब वो समझ गया वो खिलौना था, ठीक है, वो उस वक्त उस अवस्था के लिए ठीक था, मैं खेल रहा था, लेकिन अब तो बड़ा हो गया हूँ, अभी उससे नहीं खेलना चाहिए, है ना। अब उसमें इंटरेस्ट चला गया, अब बड़ी कार में BMW लूँगा, ओडी लूँगा, या और भी रोल्स रॉयस जो भी है ना, ऐसी गाड़ी लूँगा। अब उसकी इच्छा है, अब एक्चुअल वही है ना। अब जो खिलौनों की कार है वो तो उसका क्या है, प्रतिबिंब है,
एक छोटा सा मॉडल बनाया गया है, सैंपल है, लेकिन ओरिजिनल जो है वो एक्चुअल है। तो उसी तरह भगवान जब की भक्तिमय सेवा करते हैं, हम यहाँ प्रयास करते हैं, तो हमको उसका थोड़ा थोड़ा अनुभव होता है। अनुभव होने के बाद हम समझ सकते हैं कि वास्तविक रस क्या होता है। और भगवान की सेवा करने का जब हम प्रयास करते हैं, छोटी सी छोटी सेवा है ना, तो उससे हमको आनंद की अनुभूति होती है, और वो अनुभूति से हम और भक्ति और भगवान की सेवा करने के लिए प्रेरित होते हैं। और फिर हमको समझ में आता है कि वास्तविक जो आनंद है वो क्या होता है। भले ही हम ये भौतिक शरीर की बंधन मर्यादा होने के कारण क्या करते हैं कि हम जो उच्च रस है उसका पूर्णतया आस्वादन का अनुभव नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही हमारी भक्ति में प्रगति होगी ना, फिर हम वो अनुभव कर पाएंगे इसी शरीर में। जैसे अभी क्या होता है कि अभी नवरात्रि गई तो लोग क्या करते हैं, गरबा खेलते हैं, और उसमें हरे कृष्ण महामंत्र है उसकी धुन लगाते हैं, और अपने आप को क्या करते हैं, भ्रम में रखते हैं कि मैं भक्ति करता हूँ। गरबा खेलते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र की धुन लगाते हैं, और सोचते हैं कि ये क्या है, वो भक्ति है, और वो क्या है, दिव्य अवस्था है। लेकिन वो दिव्य अवस्था नहीं है, वो हमारा भ्रम है। क्योंकि पहली चीज़ तो कभी आचार्यों ने किसी इस बात को कभी समर्थन नहीं दिया कि ऐसे करना चाहिए, है ना। वो भक्तों का भगवान के साथ जो मुक्त अवस्था में प्रेम का आदान प्रदान है, उसकी नकल हम नहीं कर सकते। गरबा खेलना वो क्या है, गोपियाँ भगवान के साथ जो है वो उनकी मुक्त अवस्था में भगवान के साथ जो प्रेम का आदान प्रदान वो है। हम मुक्त नहीं है ना, और मुक्त हो के नहीं है, फिर भी उनकी नकल तो करनी नहीं चाहिए, हमको उनके उपदेशों के अनुसार पालन करना चाहिए। और एक चीज़ है कि हमारी जो हरे कृष्ण महामंत्र के धुन पे गरबा रमने की जो प्रवृत्ति है वो बिल्कुल आध्यात्मिक नहीं है। उसका एक और भी एग्जाम्पल ये है कि जैसे गोपियाँ है, उन्होंने बहुत सारे हजारों वर्ष तक भगवान के साथ कंटिन्यूस रास लीला की थी। हम कर सकते हैं क्या? वो वही वाला उदाहरण हो गया कि भगवान ने गोवर्धन उठाया था, अब आप भी गोवर्धन उठाओ। भगवान की वो जो लीला है उसकी नकल करनी नहीं है, वो हमको समझनी है। भगवान ने भगवत गीता में बताया ना कि जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, उनको तत्वतः यह समझना है कि वो मुक्त अवस्था में की हुई भगवान की भक्तों के साथ आदान प्रदान की लीला है, वो बद्ध अवस्था में की हुई नहीं है। तो हमको वो मुक्त अवस्था वाली चीज़ों की नकल नहीं करनी है, हमको जो हमारी अवस्था है उस हिसाब से करना है। धीरे धीरे साधन भक्ति से प्रयास करके आगे बढ़ना है, कि हम नित्य बद्ध है और वो नित्य मुक्त भक्त है। तो नित्य भक्त बद्धों की जो क्रिया है, उन क्रियाकलापों का हमको नकल नहीं करनी है, उनके उपदेशों का जो है वो पालन करने का प्रयास करना है। तो जैसे जैसे हम साधन भक्ति प्रयास करेंगे, 16 माला का जप करेंगे, मंगला आरती अटेंड करेंगे, जैसे एकादशी व्रत का पालन करेंगे, अभी दामोदर मास कार्तिक मास चल रहा है तो हम भगवान को दीप अर्पण करते हैं। ऐसे करके धीरे धीरे भगवान की प्रेममयी सेवा में लगेंगे तो फिर धीरे धीरे हमारी प्रगति होगी, और फिर हम वो प्रेम का अनुभव कर पाएंगे। जो मुक्त भक्त भी भगवान के साथ जब क्रियाकलाप करते हैं और जो प्रेम का अनुभव करते हैं, उसका भी हमको अनुभव होता है, लेकिन हम हमारे हृदय में बहुत काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इसकी वजह से हम पूर्णतया नहीं करते। थोड़ा थोड़ा हमको अनुभव होता रहता है, फिर हम भूल जाते हैं, फिर थोड़ा अनुभव होता है, फिर हम भूल जाते हैं, फिर हम भौतिक जगत में इंद्रिय भोग में वापस लग जाते हैं, फिर बुद्धि ठिकाने आती, फिर हम वापस भगवान का भजन करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे धीरे 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 प्रयास करते करते हम एक समय आएगा कि जब हम भगवान की भक्ति में स्थिर हो जाएंगे। यहाँ कहते हैं ना, उच्च रस का जब हमको वास्तविक अनुभव हो जाएगा तो हम स्थिर हो जाएंगे। हरे कृष्ण।